ماڈل ٹاؤن میں رہتی ہوں، اور آج کل ماڈل ٹاؤن کی جو جی بہت خوشحال ہے، لیکن اس خوشحالی پہ ایک زوال آ چکا ہو. وہ یہ کمرشلائزیشن انتہا کی ہو چکی ہوئی ہے وہاں پہ، اور کورٹ کا آرڈر آیا ہوا ہے، ہائی کورٹ کا اس کے خلاف آیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی کمرشلائزیشن ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم رجسٹرار کے پاس گئے، اپنے آفس میں ہم اس کے پاس گئے، اور اس نے کہا اس نے نا بے چارگی اور لاچارگی شو کی. اس نے کہا میں یہاں پہ بہت ہیلپ لیس ہوں، کیونکہ اوپر سے ایسے آرڈر آ جاتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا. تو آپ دیکھیں پوری سوسائٹی کو اگر کسی نے جرمنان بنایا اور بتائیں وہ ہم رجسٹرار سے نہیں مطلب سمجھ آ گیا، رجسٹرار سے بات کرتے ہیں. اور کچھ کہا ہے آپ نے؟ I think spoken like a true bureaucrat, unpredictable and unscheduled load shedding for 3 to 4 hours also is going on. So we need to really address this issue. Aman committees کو میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی. I endorse everything because all سب کچھ already cover ہو چکا ہے کہ امن کمیٹیز میں جو ہماری درگاہ آتی ہیں، ہماری جو سیمیٹریز آتی ہیں، وہاں کا نظام جو ہے بہت خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. امن کمیٹیز کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا جائے، اور ہم ساری جتنے بھی ایم پیز ہیں اور آرگنائزر پی ٹی آئی کی تنظیم ہے، ان سے مشورہ کر کے نئے لوگوں کو اس میں ڈالا جائے، کیونکہ ابھی جو محرم آ رہا ہے اس میں کافی فعال ہونا پڑے گا. اب اس وقت غیر فعال ہیں وہ امن کمیٹیز. زینب کو دے دیں. زینب اچھا چلیں آپ بتائیں. شکریہ جی. شمسا جی ہوں میں. دیکھیں یہ ایک تو جو میں لاسٹ ٹائم میں نے جیسے سب کہہ رہے ہیں کہ بہت ماشاء اللہ سی سی پی او نے جو تھے ہمارے، اور ہمارے جو پولیس والوں نے بڑا اچھا ہمارا ایک میٹنگ کی، لیکن میں نے اس وقت بھی یہ آبزرویشن دی اور اب بھی دے رہی ہوں کہ ہمیں وہ جتنے بھی ماشاء اللہ سینئر آفیسرز آئے تھے، ایک بھی خاتون نظر نہیں آئی پولیس آفیسر. ہاں ہونا چاہیے نا کہ ہمارے 50% ویمن، دے آر ویمن. اور دوسرا میں کیونکہ لیڈریٹ کا کام کرتی ہوں، میرے پاس بہت خواتین آتی ہیں جن کو تھانے میں جا کے بھی اپنی اپلیکیشن کرنا ہوتا ہے. میں نے اس وقت بھی ریکویسٹ کی تھی، اور اب بھی کہہ رہی ہوں کہ سوائے اب ریس کورٹ کے تھانے کے لیے اور کہیں بھی آپ کا ویمن کا تھانہ نہیں ہے. حالانکہ ایک نیو مسلم ٹاؤن میں مجھے یاد ہے ڈیسک ہوا کرتا تھا خواتین کا. اب جب خواتین کو، اب آپ یہ بتائیں کہ مردوں کے لیے ایک تھانے سے دوسرا تھانہ جانا کتنا مشکل ہے. ہر تھانے میں یہ جہاں تک ہو سکے خواتین کا ڈیسک ہونا بہت لازمی ہے. یہ پلیز میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی ریکویسٹ کی تھی، اب پھر کہہ رہی ہوں. تو آئی بی ریئلی گریٹفل. اور دوسرا جو نے امن کمیٹی کی بات کی بالکل ٹھیک کیا. امن کمیٹی میں بھی خواتین کا ہونا آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ بہت لازمی ہے. دس شوڈ بی اے پارٹ آف دی امن کمیٹی. اور محرم کے لیے میں یہ کہتی ہوں کہ محرم کی اپنی سیکورٹی ہوتی ہے. ایک ہمارے علاقے میں جو ٹیررزم میسج آ رہا ہے تو وی ہیو ٹو بی ویری 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 کیئرفل اینڈ ویجیلنٹ فار محرم. تھینک یو. شمسا صاحب ایسے کریں گے کہ ہم ایک زینب کی باری ادھر بات اسی، اور ایسے کریں گے کہ میں ڈسکس کرتا ہوں امن کمیٹی کا ایشو، لیکن سیسو صاحب اگر کرائمز اگینسٹ ویمن جو ہے اس کے لیے اگر کوئی ارینجمنٹ پہلے کچھ ہوا تھا. ایک منٹ ہاں جی یار یہ ذرا ایک منٹ مائک میں یار سی سی پی او صاحب سے آگے سے. اچھا جی بتائیں جی. یہ آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا، یہ تین چیزیں خواتین کے حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ آلدو ہمارے پاس ایک ہی تھانہ پورے لاہور میں ہے جس میں کہ ایک بچے کا اندراج ہوتا ہے، ایف آئی آر اندراج ہوتا ہے کہ خواتین کا جینڈر سے ریلیٹڈ ایشو ہے. لیکن ہر ڈویژن میں، ہر ایس پی آفس میں ہمارا ایک جینڈر کرائم سیل بنا ہوا ہے جو خواتین سے متعلقہ جتنی بھی تفتیشیں ہیں وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ سر ہر تھانے پہ ہم نے فیمیل اسٹاف 24/7 جو ہے وہ ریکروٹ کیا ہوا ہے کہ ان کیس آف وومن گوز ٹو پولیس اسٹیشن شی ول بی ڈیلٹ بائی وومن. وہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی سر. ہر تھانے پہ سر ہماری لیڈی کانسٹیبل یا ہیڈ کانسٹیبل جو ہے وہ راؤنڈ دی کلاک ہوتی ہے کہ اگر کوئی خاتون جاتی ہے تو اس کو وہی ہے. لیکن یہ ہمارا سر جینڈر کرائم سیل ہے، یہ ہر ڈویژن میں آپریشن ہے اور ساری کی ساری خواتین سے ریلیٹڈ تفتیشیں جتنی بھی ہے. ویری گڈ ویری گڈ. اچھا زینب جی. سر بلال اسلم بھٹی میرا نام ہے جی. PP 163 سے ٹکٹ ہولڈر ہوں. سر جو میٹنگ ہماری آج سیکنڈ ہو رہی ہے، مجھے جو لگا ہے وہ صرف یہ کہ
CCPO صاحب یا پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے علاوہ اس معذرت کے ساتھ کسی بھی ڈپارٹمنٹ نے اس میٹنگ کو سیریس نہیں لیا. پچھلے ایک مہینے میں انہوں نے ایک بہت میٹنگ بلائی پورے لاہور کی. اس کے بعد ہمارے ڈویژنل SPs کے ساتھ ہمارے جتنے متعلقہ SHOs ہیں ان کے ساتھ ہمارا اچھا ہو گیا, کوآرڈینیشن اچھی ہوگی اور اس کے اثرات الحمدللہ ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے. ہم کال کرتے ہیں, ہمارا کام ہو جاتا ہے. سر معذرت کے ساتھ 2-3 ڈپارٹمنٹس ہیں. سر میرا کیونکہ حلقہ کنٹونمنٹ کا ہے تو کنٹونمنٹ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ نیکسٹ میٹنگ میں کنٹونمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو کو بھی آپ اس میٹنگ میں بلایا کریں, کیونکہ ہم CO سے ملنے جاتے ہیں, کارڈ اگر بھیجتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اسٹیشن کمانڈر سے میں ملنا چاہ رہا تھا پچھلے 6 مہینے سے, انہوں نے ٹائم نہیں دیا. کسی دوست کے ریفرنس سے جا کے میں ان سے مل کے آیا ہوں, پولیٹیکلی انہوں نے ہمیں ٹائم نہیں دیا. سر اگلے 2 ماہ کے بعد سپتمبر میں کنٹونمنٹ کے اندر الیکشن اناؤنس ہے, 9 ستمبر کو وہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے اور معذرت کے ساتھ ایک پینی کی ڈیولپمنٹ ہم 3 سال کے اندر نہیں کروا سکے. پچھلی جو میٹنگ جس سے پچھلی مہینے میٹنگ ہوئی تھی DC صاحب اس میں تھے, ساری کیونکہ قیادت نہیں تھی. سر اس میں بھی میں 2 مہینے پہلے بھی ریکویسٹ کر کے گیا تھا, ہمیں کچھ فنڈز ایشو ہوئے ہیں جو کہ صرف کاغذوں تک ہیں, آج تک پریکٹیکلی ان فنڈز کے اوپر کوئی ہم نے کام نہیں کروایا. سر لیسکو صاحب جو لیسکو کے یہاں پہ نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے کینٹ سرکل کے SC صاحب بھی بیٹھے ہیں. سر 3 سال سے ایک اپلیکیشن دے رہا تھا, ایک پول ٹیڑھا ہوا تھا. پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ اس پول کو ایک بندہ ٹھیک کرنے آیا پرائیویٹ یا جس طرح بھی ہے, اس کی ڈیتھ موقع پر ہوئی ہے, پھر وہ پول چینج ہوا ہے. تو سر تاریں لٹکی ہوئی ہیں, پول ٹیڑھے ہیں, درخواستیں دے دے کے تھک گئے ہیں, لیکن آج تک انہوں نے ہماری بات نہیں سنی. یہ SC صاحب بیٹھے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. ایک پائپ لائن نہیں ہم نے سی گیس کی اپنے حلقے میں نہیں ڈلوا سکے. سر میرا حلقہ جو PP163 ہے اس میں صرف 2 ہائی اسکولز ہیں. سر نہ کوئی کالج ہے اس میں, نہ کوئی ہاسپٹل ہے سرکاری, نہ کوئی گراؤنڈ ہے. سر بے شمار جگہ صوبائی گورنمنٹ کی, فیڈرل گورنمنٹ کی, اوقاف کی پڑی ہوئی ہیں, کبھی آج تک اس کے اوپر کسی نے انٹرسٹ نہیں لیا کہ وہاں پہ ہم کوئی سرکاری اسکول بنا دیں, سرکاری کالج بنا دیں یا کوئی سرکاری گراؤنڈ بنا دیں. سر میری گزارش ہے کیونکہ آپ فیڈرل کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں تو ہمارا زیادہ کام فیڈرل سے متعلق ہے. سر کنٹونمنٹ کو اور جو فیڈرل کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے ہمارا لائزون, اور نیکسٹ میٹنگ میں ان کو کائنڈلی بلائیں. جو فنڈ ہیں ہمارے کیونکہ 2 مہینے بعد الیکشن ہے, نہیں کروائیں گے تو ہم عوام کے پاس کیسے ووٹ مانگنے جائیں گے. اور اسی کنٹونمنٹ کے الیکشن کے اوپر پورے پاکستان کے جو لوکل باڈی کا الیکشن ہو رہا ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا, اس کے اوپر انحصار کرے گا. جس طرح کہ 2015 میں الیکشن پہلے کنٹونمنٹ کا ہوا تھا اور اسی رزلٹ پہ باقی پورے پاکستان کا رزلٹ آیا تھا, وہ آپ کے سامنے ہے. اگر یہی صورتحال رہی تو پھر وہ نتائج اچھے نہیں آئیں گے, آپ کو بھی بہتر پتا. تھینک یو. اچھا جی, بلال صاحب نے جو پوائنٹ ریز کیے ہیں, دیکھیں ایک بات تو کلیئر ہے اس میٹنگ کے اندر کہ لاسٹ میٹنگ کے بعد جو پولیس آفیسرز نے ریچ آؤٹ کیا ہے اس کا بڑا اثر پڑا ہے. اور آج آپ کو میٹنگ میں سارے کامنٹس میں نظر آ رہا ہے, پہلے زینب آپ کو کامنٹس میں نظر آ رہا ہے کہ لوگ پازیٹیولی رسپونڈ کر رہے ہیں. میری ریکویسٹ ہوگی خاص طور پہ ڈی سی صاحب آپ سے, آپ کے آفس سے, اور کیونکہ آپ نے ڈسٹرکٹ لیول پہ لیڈ لینی ہے, آپ بھی اس قسم کی کوئی انٹریکشن شروع کریں تاکہ لوگوں کو یہ فیلنگ ہو کہ ہماری بات کا ہمیں بھی ہے. اسی طرح جو باقی محکمے ہیں, لیسکو ہے, واپسا ہے, PHA ہے, تھوڑا سا نا انٹریکشن جو ہے اس کو بڑھائیں. میں پھر بھی یہ کہوں گا سارے کام ایسے نہیں ہوتے جو فوری طور پہ ہو جائیں, لیکن انٹریکشن ہونے سے ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم سارے equally involved ہیں in the problem that we are facing. So my request is کہ اس کو, because if we keep meeting every time and we keep hearing the same complaints every time, then what's the purpose of this committee? So اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ رسپانس ٹائم اور ریچنگ آؤٹ ٹو پیپل جو ہے وہ ضرور کی جائے. اچھا جی, جو بھٹی صاحب نے چلیے آپ بتائیں. I have been asking for some time. Bhatti has said something that is very important. ہم لوگ کے ساتھ جو یہ ان کا علاقہ ہے اس کے ساتھ 164 بھی ہے اور ان میں بہت سارے گاؤں ہیں. یہاں جو صورتحال ہے لیسکو کی بہت بری, سارے جتنے وائرس ہیں میں 3 سال سے پھٹ گئی ہوں بول بول کے کہ ان کے وائرس کو باندھ دیں. ابھی بارشیں ہوں گی, وہ those wires become a menace to the society. وہاں بچے مرتے ہیں, لوگ بھی مرتے ہیں, الیکٹریکیوشن ہوتی کیونکہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے. دوسری چیز ہے کہ وہاں جو آبا کی صفائیاں کروانی ہیں,
सफाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज अदरवाइज होल प्लेस गेट्स, वो है डंगर और पता नहीं क्या क्या होता है, तो वो वेस्ट मैनेजमेंट हैज टू क्लीन इट बिफोर द बारिश, all the nalas. The other thing is that yes, this Aman committee has to change. All we have dadas everywhere. We have seen the narcotics that are being sold in those areas. It is shameful that this has been happening and has been allowed to happen. I think अभी जो सूरत हाल है हमने सब ने बात कर ली है, अब ऐसा है कि हम करेंगे क्या और अमल क्या करें, और आपसे भी मैं राब्ता करूँ. अच्छा, मैं ये अमन कमेटी का मैं CCPO साहब से डीसी साहब से डिस्कस करता हूँ. लेट्स सी हाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड. ज़ैनब, थैंक यू वेरी मच सर. मुझे पूरा यकीन है कि इस दफ़ा भी मुहर्रम में जिस तरह पुलिस हमेशा पूरा ख्याल रखती है, हर तरफ अमन का ख्याल रखेगी. लास्ट टाइम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने में आया और वही आया था सोशल मीडिया का. सोशल मीडिया के ऊपर अहले तशरीह के ज़ाकिर और अहले सुन्नत के जो मुफ्तीन थे, उन्होंने बाकायदा एक तरह से वो रोज़ रात को उनकी वीडियोस जो थी उसके ऊपर आती थी, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों में इश्तियाल अंगेज़ी होती रही. तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि फिर बाद में एंड के ऊपर एक अहले तशरीह के जो ज़ाकिर थे उनको फिर यहाँ से रिमूव भी कराया गया और काफ़ी इशू बना. तो उसको मेरे ख्याल अगर पहले से भी देख लिया जाए, सोशल मीडिया को थोड़ा सा कंट्रोल करें, ताकि ये वरना आपके लिए नक्स अमन का मसला होगा. नंबर 2, लास्ट मीटिंग में जिक्र हुआ था कि पुलिस की जो हाई अप्स हैं वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, और जो थाना कल्चर अभी तक चेंज हुआ, मैं इतनी जल्दी एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि इतनी जल्दी वो हो भी जाएगा. पहले जैसे मशहूर हुआ करता था थाना सत्तू कतरा और लोग जाते रहते थे, इसी तरह शायद आजकल हेयर पिन का इलाका जो है वो उसी तरह से हो रहा है. तो पुलिस मिल के नीचे, मैं अभी DIG ऑपरेशन साहब से सुबह मैंने कॉल की थी, अभी भी एक मामला डिस्कस करूँगी कि पुलिस खुद लोगों के साथ मिल के और अभी वही सारे काम कर रही है. तीसरी जो एंटी नार्कोटिक्स की हम बात कर रहे थे, डॉक्टर जरका ने भी मेंशन किया, तलत साहब थी, मैं हूँ, हम लोग भी एक एज को एक्सटर्नल एडवाइजर GCU के साथ काम कर रहे हैं. बड़ी दफ़ा हम लोगों ने पॉइंट आउट किया और वो उसमें बड़े वाज़े, अब क्योंकि बड़ी खुश हुई है, हमें इस चीज़ का नहीं था कि मियाँ आज़म इकबाल और लेडीज़ के ऊपर CCPO साहब इन्वॉल्व हैं. बड़े वाज़े तौर के ऊपर थानों के बाहर में लड़कियाँ जो हैं वो फुटपाथ के ऊपर वो इंजेक्ट करती नजर आई हैं. मुझे बहुत वीडियो रिसीव हुई हैं, बड़े अच्छे से हमें पता है. चुबुर्जी के बाहर, थाने के बाहर, DHA गोल मार्केट के ऊपर बहुत सारे ऐसे हमने किए हैं. तो मेरी रिक्वेस्ट होगी, एक दफ़ा मैंने सुना कि ANF और जो हमारी पुलिस है वो मिल के कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन करने वाली है, लेकिन उसका मज़ीद मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ. अगर ऐसा कुछ करेंगे तो मेरा ख्याल है ये पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत बेहतर होगा. थैंक यू डॉक्टर सीनी. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा, मैं पहली दफ़ा इस कमेटी की मीटिंग में आई हूँ, और मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब 3 साल होने वाले हैं, हमारे अभी तक काम नहीं हुए, रुके हुए हैं. जो थोड़ी बहुत होने थे वो भी बस मामूली लेवल पे. और मेरा ताल्लुक कैंट से है जो PM साहब का हल्का है, और वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारे कोई कैंडिडेट विन नहीं कर सके, तो वो हल्का पे भी बहुत ज़्यादा उस पर काम नहीं हो रहा. हम लोगों को फंड्स का कहा गया, लेकिन हमने स्कीम्स भी दी, लेकिन कोई स्कीम पे काम नहीं हुआ. इसके अलावा कचरा और सीवरेज के जो प्रॉब्लम्स हैं, डिपार्टमेंट्स को कॉल करते हैं, वो हमारे डोमेन में नहीं होता. तो हम कैंट के लिए किसके पास जाएँ? मैंने CEO कैंट, वॉल्टन CEO सबको जाके मिले. कचरे के ढेर हैं जो कि एयरपोर्ट से भट्टा चौक तक जो बड़ा एरिया जिससे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, उसके कचरे. और इसके अलावा हम कॉन्टैक्ट करते हैं वेस्ट डिपार्टमेंट को, वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं कि कैंट हमारे अंदर नहीं आता. तो फिर CEO वॉल्टन कैंट सबसे मिली हूँ, एक दो दिन में उठाते हैं, फिर दोबारा वही हाल हो जाता है. तो इसके लिए कैंट में अमन कमेटी में आप कैंट के भी मेंबर, स्पेशली फीमेल मेंबर को जरूर डालें. चलें जी, उमर और याकरम उस्मान, उसके बाद वील हैव टू फिनिश द मीटिंग. शफकत साहब बहुत शुक्रिया. पहले तो ये हमारी खुशकिस्मती है आप हेड कर रहे हैं, और बड़ी बदकिस्मती होगी अगर इसके बाद भी हम चेंज ना देखें, लेकिन मुझे उम्मीद है हम देखेंगे. 3 इशूज़ जो डिस्कस नहीं हुए उन पर आपकी तवज्जो दरकार है. लेस्को के हेड साहब तो नहीं, लेकिन चने ऐसे साहब मौजूद हैं पूरे शहर में, हर इलाके में सर, इंक्लूडिंग आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, बगैर रिश्वत के मीटर लगना मुमकिन नहीं है. आराम से नीचे आप जाएँ 20,000 से 80,000 डिपेंडिंग ऑन द लोकेलिटी रेट चल रहा है, और मिली भगत के बगैर ये मुमकिन नहीं है. और जो ना दे और पॉलिटिकल अप्रोच ना करे, उसके लूप होल्स में फाइल ऐसी फंसाई जाती है, साल नहीं आता. कुछ स्पेसिफिक केस दें ताकि हम प्रोसीड. सर मैं स्पेसिफिक बताता हूँ, जॉर्ज टाउन में हाउसिंग सोसाइटी. अभी नहीं, आप लिख के दें ताकि वी हैव एन इंक्वायरी कंडक्टेड ऑन. परफेक्टली फाइन. दूसरा सर एक्साइज टैक्सेशन का इशू है. पिछले साल इनका बहुत बड़ा इशू रहा, गाड़ियों के
रजिस्ट्रेशन कार्ड ब्लॉक रहे, बड़ी मिसमैनेजमेंट थी, कहा गया कि ये टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ, विच इज सीरियस मिसमैनेजमेंट। अब इस वक्त एक नया तमाशा चल रहा है, विद ड्यू रिगार्ड माइंड माई लैंग्वेज, कि गाड़ियों की नंबर प्लेट से चुनी हुई, और यहाँ पे भी यही कहा गया है कि वो ब्लॉकेज है, होपफुली अब जुलाई में आएगा। चलें, अल्लाह करे ये अब जुलाई आ गया, रिजॉल्व हो जाए, लेकिन अगर हमें पता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना है तो हम क्या सो रहे होते हैं कि हम उसको वक्त पे रिन्यू नहीं कर सकते? जी सर। तीसरा सर, यहाँ पे काफी तारीफ हुई है सीसीपीओ साहब की। एक्साइज का है कोई यहाँ पे? एक्साइज का नहीं। बस मैं आपके पास आऊंगा। और ये साथियों को जी सर, तीसरा पुलिस के हवाले से नो डाउट सीसीपीओ साहब की बहुत तारीफ हुई है। हमारे पार्टी के जो कोलीग एज अ फाउंडिंग मेंबर, इवन यूके के जो मेंबर हैं, बहुत अच्छे रिमार्क्स देते हैं। मुझे अनफॉर्चुनेटली बड़ा बेटर एक्सपीरियंस हुआ है, वो आपकी तवज्जो के लिए कि हम इम्प्रूव कर सकें। सर, ये जौहर टाउन में नवाब टाउन पुलिस स्टेशन ने एक जगह पे रिश्वत लेके इंटरवेन किया, विच वॉज विदाउट लीगल अथॉरिटी। इंडिविजुअल केस को नहीं, इंडिविजुअल नहीं सर, मैं सिर्फ इशू हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि समझ आ जाए। मैं डिटेल इंडिविजुअल नहीं करता अगर आप नहीं चाहते। उसमें सर जब उनको राब्ता करके कहा गया कि एक तो ये काम इलीगल है, दूसरा ये पीटीआई के लोग हैं, लेकिन आप पीटीआई को भी छोड़ें, इंसाफ पे मुबनी फैसला करें, तारुफ नहीं कराया गया कि हम कौन हैं। उन्होंने कहा जी जाएं, आपने जिसको कहना आप कह दें, या काम ऐसे ही होगा। इवेंचुअली सिविल सेशन कोर्ट से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लिया गया और उन्हें सर्व किया गया। सीसीपीओ साहब को इसकी तफसील चाहिए तो वे डॉक्यूमेंट सारी सर्व हो। आप ऐसे करें ना सीसीपीओ साहब को बाद में मिलने, और वो आपका नंबर सेंड कर लें, ये बात कर लेंगे। अच्छा जी, 0322 जी 42191। अच्छा जी, अभी अकरम उस्मान। बिस्मिल्लाह, थैंक यू डॉक्टर साहब। सीसीपीओ साहब की तारीफ होनी चाहिए, उन्होंने काफ़ी अच्छा लाइसेंस लाया पिछली कमेटी के बाद। बस वो बात होगी, भट्टी साहब ने बात कर दी, क्योंकि अब हम आगे चल रहे हैं, इलेक्शन हमारा आ रहा है, तो सारी बात होगी। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर इस जुडिक्शन में आती है कंटोनमेंट बोर्ड, तो काइंडली उनका कोई नुमाइंदा यहाँ पर हो, और कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से हमारे इलेक्शन आ रहे हैं, क्योंकि जो है ना वो अप्लाई लोग करना शुरू हो गए हमारे पास, क्योंकि मेरे वो अंडर आता है तो जनरल, तो उसके लिए जो नेक्स्ट मीटिंग लिया उससे पहले अगर हमारा कोई इंस्ट्रक्शन हो जाए कंटोनमेंट के हवाले से, तो हमारा इलेक्शन जो है ना वो जीतना बहुत जरूरी है मैक्सिमम वार्ड्स में। तो काइंडली जो है ना वहाँ पर कोई खुसूसी तवज्जो दें इस बारे में कि हमारा जो है ना कंटोनमेंट बोर्ड के जो मसाइल हैं, जो कितने कैंडिडेट्स हमारे पास आ रहे हैं, हमने उसको जो है ना पूरी तौर पर सर आपके लिए थैंक यू वेरी मच, काफ़ी अच्छा लगेगा। उसको नोटिस भेजना। अच्छा जी, आई नो अच्छा जी, बात यह है कि आई अगेन सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ लाए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का भी और हमारे पार्टी के जो रहनुमा हैं लाहौर के। मेरा ख्याल है कि कुछ बेहतरी नज़र आ रही है पिछली मीटिंग के बाद। मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि असल इशू जो है वो राब्ते का फुकदान है। जिस तरह राब्ता होगा उससे एक ये फीलिंग होगी कि आवाम के मसाइल जो हैं वो सुने भी जा रहे हैं, और जो हल हो सकते हैं फौरी तौर पे वो हल हो जाए, जो नहीं हो सकते उनको वक्त गुजरने के साथ कोई अगर फंडिंग की ज़रूरत है, किसी और चीज़ की ज़रूरत है, उसमें कर लिया जाए। मैं आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी कि आज हमारे सीनियर ऑफिसर्स जो कि मुख्तलिफ लाहौर डिस्ट्रिक्ट के महकमे हेड करते हैं वो भी आए हैं, DGNDA, DGPHA वगैरह। इट्स ए गुड आइडिया बिकॉज आप लोगों की भी इंटरेक्शन होती है। और चीफ इंजीनियर साहब प्लीज़ CEO को कहें कि वो तशरीफ लाया करें, ठीक है। सो हम इसके मिनट्स रिकॉर्ड करेंगे। मिनट्स रिकॉर्ड करने के बाद हम अगली दफ़ा मीटिंग में जो चीज़ें हैं उनको दोहराएंगे। इन द मीन टाइम जो इंडिविजुअल आपके मसाइल हैं वो आप प्लीज़ फॉलो कर लें, और अगर आप CCPO साहब से मिलना चाहते हैं, DC साहब से मिलना है, उनके साथ मिल लें। लेकिन इंशाल्लाह इज्तिमाई काम जो है उसको अगली दफ़ा हम कोशिश करेंगे कि हम लाहौर की जो डेवलपमेंट प्रोग्राम में चीज़ें हैं ना, हम कोशिश करेंगे कि हमको थोड़ी सी ब्रीफिंग अरेंज करें PND की तरफ से, कि पता लगे कि लाहौर के अंदर जो तरक्याती काम हो रहे हैं उनके बारे में आप सबको समझ हो, आप सबको पता हो। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे अपने हल्के में
40 करोड़ एक फंड लग चुका है और उसके अलावा NDA के काम भी हैं, बाकी इस तरह हर हल्के में हुआ है काम, आपके भी हुआ है, आपको तो मैंने खुद पैसे लेके दिए हैं। थैंक यू वेरी मच। आते हैं उनको मैनेज करने के लिए हम किसी न किसी इक्विपमेंट को थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं और उसके लिए स्ट्रैगिंग करते हैं। ऐसा नहीं है, मैं मैडम से भी गुजारिश करूँगा कि कहीं भी लेस्को के अंदर 1 घंटे से ऊपर ड्यूरेशन नहीं है, बल्कि ज़्यादातर जो ड्यूरेशन हैं वो आधे घंटे की है। तो मैं मजीद मंडे के बाद ये काफ़ी हद तक सूरत हाल जो है वो बेहतर हो जाएगा। अच्छा इसके ऊपर तो बहुत रिएक्शन आ गया है, लेकिन जो अच्छी खबर है वो ये है कि मंडे तक वो कह रहे हैं कि इसको जनरेशन का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। तो भाई इंश्योर करें, आप डिबेट नहीं हम कराना चाहते, इंश्योर करें कि अगर जनरेशन का प्रॉब्लम ख़त्म है, अवेलेबिलिटी है, तो अगर ब्रेक डाउन कहीं होता है तो क्विक रिस्पॉन्स होगा तो लोगों को आसानी हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, बात ये है कि हमने और 15 मिनट में ये मीटिंग ख़त्म करनी है और इसके लिए आपको बहुत ही अर्जेंट पब्लिक इशू है जी। जी उमुल ये इधर दे दें, इधर दे दें, उमुल बनीन MPA जी, आप दे देना जरा। मॉडल टाउन में रहती हूँ और आजकल माशाल्लाह बड़ा खुशहाल इलाका है जी बहुत खुशहाल है, लेकिन इस खुशहाली पे एक ज़वाल आ चुका हो। वो ये कमर्शियलाइजेशन इंतहा की हो चुकी हुई है वहाँ पे, और कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ, हाई कोर्ट का इसके खिलाफ आया हुआ है, लेकिन फिर भी कमर्शियलाइजेशन होती चली जा रही है। हम रजिस्ट्रार के पास गए, वो अपने ऑफिस में हम उसके पास गए और उसने कहा उसने ना बेचारगी और लाचारगी शो की। उसने कहा मैं यहाँ पे बहुत हेल्पलेस हूँ, क्योंकि ऊपर से ऐसे ऑर्डर आ जाते हैं कि मैं नहीं कर सकता। तो आप देखें पूरी सोसाइटी को अगर किसी ने जर्माल बनाया और बताएं, वो हम रजिस्ट्रार से नहीं मतलब समझ आ गया, रजिस्ट्रार से बात करते हैं। और कुछ क्या है आपने? I think spoken like a true bureaucrat, unpredictable and unscheduled load shedding for 3 to 4 hours also is going on. So we need to really address this issue. अमन कमेटीज को मैं थोड़ा सा एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। I endorse everything because और सब कुछ ऑलरेडी कवर हो चुका है कि अमन कमेटीज में जो हमारी दरगाह आती हैं, हमारी जो सेमेट्रीज आती हैं, वहाँ का निज़ाम जो है बहुत ख़राब होता चला जा रहा है। अमन कमेटीज़ को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए और हम सारी जितने भी MPs हैं और ऑर्गेनाइजर PTI की तंजीम है, उनसे मशवरा करके नए लोगों को उसमें डाला जाए, क्योंकि अभी जो मुहर्रम आ रहा है इसमें काफ़ी फ़ाल होना पड़ेगा। अब इस वक्त गैर फ़ाल है वो अमन कमेटी। ज़ैनब को दे दें, ज़ैनब। अच्छा चलें आप बताएं। शुक्रिया जी, शमशाद जी मैं देखिए, ये एक तो जो मैं लास्ट टाइम मैंने जैसे सब कह रहे हैं कि बहुत माशाल्लाह CCPO जो थे हमारे और हमारे जो पुलिस वालों ने बड़ा अच्छा हमारा एक मीटिंग की, लेकिन मैंने उस वक्त भी ये ऑब्जर्वेशन दी और अब भी दे रही हूँ कि हमें वो जितने भी माशाल्लाह सीनियर ऑफिसर्स आए थे, एक भी खातून नजर नहीं आई पुलिस ऑफिसर। अच्छा हाँ होना चाहिए ना कि हमारे 50% वीमेन। और दूसरा मैं क्योंकि लीडरेट का काम करते हैं, मेरे पास बहुत ख़वातीन आती हैं जिनको थाने में जाकर कोई अपनी एप्लीकेशन करना होता है। मैंने उस वक्त भी रिक्वेस्ट की थी और आप भी कह रही हूँ कि सवाए आप रेस कोर्ट के थाने के लिए और कहीं भी आपका वीमेन का थाना नहीं है। हालांकि न्यू मुस्लिम टाउन में मुझे याद है डेस्क हुआ करता था ख़वातीन का। अब जब ख़वातीन को, अब आप ये बताएं कि मर्दों के लिए एक थाने से दूसरा थाना जाना कितना मुश्किल है।
हर थाने में ये जहाँ तक हो सके ख़वातीन का डेस्क होना बहुत लाजमी है। ये प्लीज़ मैंने आपको लास्ट टाइम भी रिक्वेस्ट की थी, अब फिर कर रही हूँ, तो आई बी वेरी ग्रेटफुल। और दूसरा जो उन्होंने अमन कमेटी की बात की, बिल्कुल ठीक किया। अमन कमेटी में भी ख़वातीन का होना आप उससे बेहतर जानते हैं कि बहुत लाजमी है। दे शुड बी पार्ट ऑफ द अमन कमेटी। और मुहर्रम के लिए मैं ये कहती हूँ कि मुहर्रम की अपनी सिक्योरिटी होती है। एक आपको इलाके में जो टेररिज्म मैसेज आ रहा है, तो वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल एंड विजिलेंट फॉर द मुहर्रम। थैंक यू। शमशाद साहब ऐसे करेंगे कि हम एक मिनट, एक ज़ैनब की बारी उसके बाद उसी, और ऐसे करेंगे कि मैं डिस्कस करता हूँ अमन कमेटी का इशू, लेकिन शीशु साहब अगर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन जो है उसके लिए अगर कोई अरेंजमेंट पहले कुछ हुआ था, एक मिनट, हाँ जी यार ये एक मिनट माइक ले लो। यार CCTO साहब से आगे से अच्छा जी बताएं जी। ये आपने जो पॉइंट रेज किया, ये तीन चीज़ें ख़वातीन के हवाले से मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि ऑल्दो हमारे पास एक ही थाना पूरे लाहौर में है जिसमें कि एक बच्चे का इंदराज होता है, FIR इंदराज होता है, तो ख़वातीन का जेंडर से रिलेटेड कोई इशू है तो। लेकिन हर डिवीज़न में, हर SP ऑफिस में हमारा एक जेंडर क्राइम सेल बना हुआ है जो ख़वातीन से मुताल्लिक़ जितनी भी तफ्तीशें हैं वो करते हैं। उसके अलावा सर हर थाने पे हमने फीमेल स्टाफ 24/7 जो है वो रिक्रूट किया हुआ है कि इन केस ऑफ वुमेन गोज टू पुलिस स्टेशन शी विल बी डेल्ट बाई वुमेन। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी सर। हर थाने पे सर हमारी लेडी कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल जो है वो राउंड दी क्लॉक होती है कि अगर कोई खातून जाती है तो उसको वही है। लेकिन ये हमारा सर जेंडर क्राइम है, ये हर डिवीजन में ऑपरेशन है और सारी की सारी ख़वातीन से रिलेटेड तफ्तीशें जितनी भी है। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ज़ैनब जी। सर बिलाल असलम भट्टी मेरा नाम है जी, PP 163 से टिकट होल्डर हूँ। सर जो मीटिंग हमारी आज सेकंड हो रही है, मुझे जो लगा है वो सिर्फ ये कि CCTO साहब या पुलिस के डिपार्टमेंट के अलावा इस माजरत के साथ किसी भी डिपार्टमेंट ने इस मीटिंग को सीरियसली लिया। पिछले एक महीने में उन्होंने खुद भी मीटिंग बुलाई पूरे लाहौर की, उसके बाद हमारे डिविजनल SP के साथ, हमारे जितने मुतल्लिका SHOs हैं उनके साथ हमारा अच्छा हो गया, कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी और उसके असरात अल्हम्दुलिल्लाह हमें नज़र आना शुरू हो गए। हम कॉल करते हैं, हमारा काम हो जाता है। सर माजरत के साथ 2-3 डिपार्टमेंट्स हैं सर, मेरा क्योंकि हल्का कैंटोनमेंट का है तो कैंटोनमेंट में आपसे गुजारिश करूंगा कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कि नेक्स्ट मीटिंग में कैंटोनमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को भी आप इस मीटिंग में बुलाया करें, क्योंकि हम CO से मिलने जाते हैं, कार्ड अगर भेजते हैं वो कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है। स्टेशन कमांडर से मैं मिलना चाह रहा था पिछले 6 महीने से, उन्होंने टाइम नहीं दिया। किसी दोस्त के रेफरेंस से जाके मैं उनसे मिल के आया हूँ, पोलिटिकली उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया। सर अगले 2 माह के बाद सितंबर में कैंटोनमेंट के अंदर इलेक्शन अनाउंस है, 9 सितंबर को वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है और माजरत के साथ एक पैनी की डेवलपमेंट हम 3 साल के अंदर नहीं करवा सके। पिछली जो मीटिंग थी उससे पिछले महीने मीटिंग हुई थी, DC साहब उसमें थे, सारी क्योंकि क़यादत नहीं थी सर, उसमें भी मैं 2 महीने पहले भी रिक्वेस्ट करके गया था। हमें कुछ फंड्स इशू हुए हैं जो कि सिर्फ कागजों तक हैं, आज तक प्रैक्टिकली उन फंड्स के ऊपर कोई हमने काम नहीं करवाया। सर लेस्को साहब, जो लेस्को के यहाँ पे नुमाइंदे बैठे हुए हैं, हमारे कैंट सर्कल के SC साहब भी बैठे हैं सर। 3 साल से एक एप्लीकेशन दे रहा था, एक पोल टेढ़ा हुआ था, पिछले हफ्ते की बात है तो उस पोल को एक बंदा ठीक करने आया प्राइवेट या जिस तरह भी है, उसकी डेथ मौके पर हुई है, फिर वो पोल चेंज हुआ है। तो सर तारे लटकी हुई हैं, पोल टेढ़े हैं, दरख्वास्तें दे दे के थक गए हैं, लेकिन आज तक उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। ये SC साहब बैठे हैं, उनसे पूछते हैं, एक पाइपलाइन नहीं हमने सुई गैस की अपने हल्के में नहीं डलवा सके। सर मेरा हल्का जो PP 163 है उसमें सिर्फ 2 हाई स्कूल हैं सर, ना कोई कॉलेज है उसमें, ना कोई हॉस्पिटल है सरकारी, ना कोई ग्राउंड है सर। बेशुमार जगह सूबाई गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट की औकाफ की पड़ी हुई हैं, कभी आज तक उसके ऊपर किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया कि वहाँ पे हम कोई सरकारी स्कूल बना दें, सरकारी कॉलेज बना दें या कोई सरकारी ग्राउंड बना दें। सर मेरी गुजारिश है, क्योंकि आप फेडरल को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा ज़्यादा काम फेडरल से मुतल्लिक़ है सर। कैंटोनमेंट को और जो फेडरल के डिपार्टमेंट्स हैं उनसे हमारा लाइजॉन और नेक्स्ट मीटिंग में उनको काइंडली बुलाएं सर। जो फंड है हमारे, क्योंकि 2 महीने बाद इलेक्शन है, नहीं करवाएंगे तो हम आवाम के पास कैसे वोट मांगने जाएंगे। और उसी कैंटोनमेंट के इलेक्शन के ऊपर
पूरे पाकिस्तान के जो लोकल बॉडी का इलेक्शन हो रहा है वो डिपेंड करेगा, उसके ऊपर इंसार करेगा। जिस तरह के 2015 में इलेक्शन पहले कैंटोनमेंट का हुआ था और उसी रिजल्ट पे बाकी पूरे पाकिस्तान का रिजल्ट आया था, वो आपके सामने है। अगर यही सूरत आ गई तो फिर वो नताइज अच्छे नहीं आएंगे, आपको भी बेहतर पता। थैंक यू। अच्छा जी, बिलाल साहब ने जो पॉइंट रेज किए हैं, देखें एक बात तो क्लियर है इस मीटिंग के अंदर कि लास्ट मीटिंग के बाद जो पुलिस ऑफिसर्स ने रीच आउट किया है उसका बड़ा असर पड़ा है। और आज आपको मीटिंग में सारे कमेंट्स में नज़र आ रहा है, उमर पहले ज़ैनब आपको कमेंट्स में नज़र आ रहा है कि लोग पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी ख़ास तौर पे डीजी साहब आपसे, आपके ऑफिस से, और क्योंकि आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लीड लेनी है, आप भी इस किस्म की कोई इंटरेक्शन शुरू करें ताकि लोगों को ये फीलिंग हो कि हमारी बात का हमें भी है। इसी तरह जो बाकी महकमे हैं, लेस्को है, वापसा है, PHA है, थोड़ा सा ना इंटरेक्शन जो है उसको बढ़ाएं। मैं फिर ये कहूँगा सारे काम ऐसे नहीं होते जो फौरी तौर पे हो जाए, लेकिन इंटरेक्शन होने से एक फीलिंग होती है कि हम सारे इक्वली इन्वॉल्व हैं इन द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग। सो माय रिक्वेस्ट इज कि इसको, बिकॉज इफ वी कीप मीटिंग every time and we keep hearing the same complaints every time, then what's the purpose of this committee? So इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि रिस्पॉन्स टाइम और रीचिंग आउट टू पीपल जो है वो ज़रूर की जाए। अच्छा जी, जो भट्टी साहब ने चलिए आप बताएं। I have been asking for some time. Bhatti has said something that is very important. हम लोग के साथ जो ये इनका इलाका है इसके साथ 164 भी है और इनमें बहुत सारे गांव हैं। यहाँ जो सूरत हाल है लेस्को की बहुत बुरी, सारे जितने वायर्स हैं, मैं 3 साल से पिट गई हूँ बोल बोल के इनके वायर्स को बांध दें। अभी बारिशें होंगी, वो those wires become a menace to the society। वहाँ बच्चे मरते हैं, लोग भी मरते हैं, इलेक्ट्रिक्यूशन होती है क्योंकि पानी खड़ा हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि वहाँ जो आबा की सफाइयाँ करवानी है, सफाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज अदरवाइज होल प्लेस गेट्स, वो है डंगर और पता नहीं क्या क्या होता है, तो वो वेस्ट मैनेजमेंट has to clean it before the parish, all the nalas. The other thing is that yes, this Aman committee has to change. All we have dadas everywhere. We have seen the narcotics that are being sold in those areas. It is shameful that this has been happening and has been allowed to happen. I think अभी जो सूरत हाल है हमने सब ने बात कर ली है, अब इससे है कि हम करेंगे क्या और अमल क्या करेंगे, और आपसे भी मैं राब्ता करूँ। अच्छा, मैं ये अमन कमेटी का मैं CCPO साहब से और डीसी साहब से डिस्कस करता हूँ। लेट्स सी हाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। ज़ैनब, थैंक यू वेरी मच सर। मुझे पूरा यकीन है कि इस दफ़ा भी मुहर्रम में जिस तरह पुलिस हमेशा पूरा ख्याल रखती है, हर तरफ अमन का ख्याल रखेगी। लास्ट टाइम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने में आया और वही आया था सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया के ऊपर अहले तशरीक़ के ज़ाकिर और अहले सुन्नत के जो मुफ्तीन थे, उन्होंने बाकायदा एक तरह से वो रोज़ रात को उनकी वीडियोस जो थी वो उसके ऊपर आती थी और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों में इश्तियाल अंगेज़ी होती थी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि फिर बाद में एंड के ऊपर एक अहले तशरीक़ के जो ज़ाकिर थे उनको फिर यहाँ से रिमूव भी कराया गया और काफ़ी इशू बना। तो उसको मेरे ख्याल अगर पहले से भी देख लिया जाए, सोशल मीडिया को थोड़ा सा कंट्रोल करें ताकि ये वरना आपके लिए नक्स अमन का मसला होगा। नंबर 2, लास्ट मीटिंग में जिक्र हुआ था कि पुलिस की जो हाई अप्स हैं वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और जो थाना कल्चर अभी तक चेंज हुआ, मैं इतनी जल्दी एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि इतनी जल्दी वो हो भी जाएगा। पहले जैसे मशहूर हुआ करता था थाना सत्तू कतरा और लोग जाते रहते थे, इसी तरह शायद आजकल हेयर पिन का इलाका जो है वो इसी तरह से हो रहा है। तो पुलिस मेल के नीचे मैं अभी DIG ऑपरेशन हाउस से सुबह मैंने कॉल की थी, अभी भी एक मामला डिस्कस करूँगी कि पुलिस खुद लोगों के साथ मिल के और अभी वही सारे काम कर रही है। तीसरी जो एंटी नारकोटिक्स की हम बात कर रहे थे, डॉक्टर जरका ने भी मेंशन किया, तलत साथ ही मैं हूँ, हम लोग भी एक एज एन को एक्सटर्नल एडवाइजर GCU के साथ काम कर रहे हैं। बड़ी दफ़ा हम लोगों ने पॉइंट आउट किया और वो उसमें बड़े वाज़ेह अब क्योंकि बड़ी खुश हुई है, हमें इस चीज़ नहीं था कि मियाँ साहब इकबाल और ये भी इसके ऊपर CCPO साहब इन्वॉल्व हैं। बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर थानों के बाहर में लड़कियाँ जो हैं वो फुटपाथ के ऊपर वो इंजेक्ट करती हुई नजर आई हैं, मुझे बहुत वीडियो रखी हुई हैं, बड़े अच्छे से हमें पता है। चुबुर्जी के बाहर, थाने के बाहर, DHA गोल मार्केट के ऊपर बहुत सारे ऐसे हमने किए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी, एक दफ़ा मैंने सुना
کہ ANF اور جو ہماری پولیس ہے وہ مل کے کوآرڈینیٹڈ آپریشن کرنے والی ہے، لیکن اس کا مزید مجھے نہیں پتا چلا کہ کیا ہوا. اگر ایسا کچھ کریں گے تو میرا خیال ہے یہ پبلک انٹرسٹ میں بہت بہتر ہوگا. تھینک یو ڈاکٹر سینی. جی تھینک یو شفیق صاحب، تھینک یو سو مچ. بہت اچھا لگا. میں آج پہلی دفعہ اس کمیٹی کی میٹنگ میں آئی ہوں اور میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اب 3 سال ہونے والے ہیں، ہمارے ابھی تک کام وہیں کے وہیں رکے ہوئے ہیں. جو تھوڑی بہت ہونے تھے وہ بھی بس معمولی لیول پہ. اور میرا تعلق کینٹ سے ہے جو PM صاحب کا حلقہ ہے، اور وہاں پہ انفارچونیٹلی ہمارے کوئی کینڈیڈیٹ ون نہیں کر سکے، تو وہ حلقہ بھی بہت زیادہ اس پہ کام نہیں ہو رہا. ہم لوگوں کو فنڈس کا کہا گیا لیکن ہم نے اسکیمس بھی دی لیکن کوئی اسکیم پہ کام نہیں ہوا. اس کے علاوہ کچرا اور سیوریج کے جو پرابلمس ہیں ڈپارٹمنٹس کو کال کرتے ہیں وہ ہماری ڈومین میں نہیں ہوتا، تو ہم کینٹ کے لیے کس کے پاس جائیں. میں نے CEO کینٹ، والٹن CEO سب کو جا کے ملے. کچرے کے ڈھیر ہیں جو کہ ایئرپورٹ سے بھٹا چوک تک جو بڑا ایریا جس سے سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے اس کے کچرے. اور اس کے علاوہ کنٹیکٹ کرتے تھے ویسٹ ڈپارٹمنٹ کو، ویسٹ مینجمنٹ کہتے ہیں کہ کینٹ ہمارے اندر نہیں آتا. تو پھر CEO والٹن کینٹ سب سے ملی ہوں، ایک دو دن میں اٹھاتے ہیں پھر دوبارہ وہ حال ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے کینٹ میں امن کمیٹی میں اب کینٹ کے بھی ممبر اسپیشلی فیمیل ممبر کو ضرور ڈالیں. چلیں جی عمر اور اکرم عثمان، اس کے بعد ویل ہیو ٹو فنش دی میٹنگ. شفقت صاحب بہت شکریہ. پہلے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے آپ ایڈ کر رہے ہیں، اور بڑی بدقسمتی ہوگی اگر اس کے بعد بھی ہم چینج نہ دیکھیں، لیکن مجھے امید ہے ہم دیکھیں گے. 3 ایشوز جو ڈسکس نہیں ہوئے ان پہ آپ کی توجہ درکار ہے. لیسکو کے ہیڈ صاحب تو نہیں لیکن چلیں SC صاحب موجود ہیں. پورے شہر میں ہر علاقے میں سر انکلوڈنگ آپ کی کانسٹیٹوئنسی میں بغیر رشوت کے میٹر لگنا ممکن نہیں ہے. حرام سے نیچے آپ جائیں 20,000 سے 80,000 ڈپینڈنگ آن دا لوکیلٹی ریٹ چل رہا ہے، اور ملی بھگت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اور جو نہ دے اور پولیٹیکل اپروچ نہ کرے اس کے لوپ ہولز میں فائل ایسی پھنسائی جاتی ہے سالہ سال نہیں آتی. کچھ اسپیسیفک کیس دیں تاکہ ہم پروسیڈ. سر میں اسپیسیفک بتاتا ہوں، جوہر ٹاؤن میں ہاؤسنگ سوسائٹی. ابھی نہیں، آپ لکھ کے دیں تاکہ ویل ہیو این انکوائری کنڈکٹڈ آن. پرفیکٹلی فائن. دوسرا سر ایکسائز ٹیکسیشن کا ایشو ہے. پچھلے سال ان کا بہت بڑا ایشو رہا، گاڑیوں کے رجسٹریشن کارڈ بلاک رہے. بڑی مس مینجمنٹ تھی، کہا گیا کہ یہ ٹائم پہ کانٹریکٹ رینیو نہیں ہوا، وچ از سیریس مس مینجمنٹ. اب اس وقت ایک نیا تماشا چل رہا ہے، ود ڈیو ریگارڈ مائنڈ مائی لینگویج، کہ گاڑیوں کی نمبر پلیٹ سے نہیں ہوئی. اور یہاں پہ بھی یہی کہا گیا ہے کہ وہ بلاکیج ہے، ہوپ فلی اب جولائی میں آئے گا. چلیں اللہ کرے یہ اب جولائی آ گیا ریزالو ہو جائے. لیکن اگر ہمیں پتا ہے کہ ایک کانٹریکٹ ختم ہونا ہے تو ہم کیا سو رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو وقت پہ رینیو نہیں کر سکتے. جی سر. تیسرا سر یہاں پہ کافی تعریف ہوئی ہے CCPO صاحب کی. ایکسائز کا ہے کوئی یہاں پہ؟ ایکسائز کا نہیں. پلیز اس کو بس میں آپ کے پاس آؤں گا پھر. اور یہ ساتھیوں کو جی سر. تیسرا پولیس کے حوالے سے نو ڈاؤٹ CCPO صاحب کی بہت تعریف ہوئی ہے. ہمارے پارٹی کے جو کولیگ ایز اے فاؤنڈنگ ممبر ایون UK کے جو ممبر ہیں بہت اچھے ریمارکس دیتے ہیں. مجھے انفارچونیٹلی بڑا بیٹر ایکسپیرینس